Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. As you know, in our previous video, we have discussed the introduction of Python libraries and what is the relationship between Python module, library and package. I hope you have watched that video also. If not, I will provide you the link of that video in this I button also. Plus, you can find the link of all my playlists in the description of my videos also. In this video, we will discuss how to create our own modules and packages in Python. Inbuilt modules तो हम लोग use करते हैं. So, can we create our own modules in Python? The answer is yes. Obviously, we can create our own modules and even packages also in Python. So now, without wasting our time, let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So now, let's start our today's video. So now, let's start our today's video. First, we will start with the structure of a Python module. Now we will be creating our own module. उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे Python module में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें क्या क्या उसका structure है. So our Python module can contain the docstring. Docstring is represented by the triple quotes, जो आपके multi-line comments होते हैं. That it is used for documentation purpose. It should be the first string stored in a Python module. जो भी हमारा Python module होगा, उसकी जो first line होगी, that will be the docstring. चाहे function के अंदर लिखो first line और in the module also. Next is variables and constants. Your Python module can define variables and constants also. Classes और objects भी इसमें हम अपने define कर सकते हैं. Plus statements जो हमने execute करानी है, that also we can define. Plus functions also. Group of code combined together with a name in order to perform a particular task. कि जनरली हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हम अपने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट जब भी हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे वहां से हम अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. राइट, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ पैकेज. द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डिसाइड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर पैकेज. अ पैकेज मीन्स फोल्डर और यू कैन से योर डायरेक्टरी which further will be the collection of the modules. तो सबसे पहले आपको अपने पैकेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करना है. Create the directory structure having folders with name of package and further अगर आपके सब पैकेजेस हैं तो create _nh_py file in a package and sub package folder. आपको अपने पैकेज और सब पैकेज में ये init वाली फाइल भी क्रिएट करनी है. This is an empty file. इस init.py फाइल को भी अभी हम डिटेल में करेंगे कि एक्चुअली है क्या _nh_. राइट, ये भी करेंगे हम. उससे पहले ये चीज देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आवर पैकेज. नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स. राइट, सो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि मेरा जो पैकेज होगा, द नेम ऑफ माय पैकेज विल बी ज्योमेट्री. उसके अंदर फर्दर मेरे पास दो पैकेजेस होंगे. वन इज विद नेम एरिया एंड सेकेंड इज विद नेम वॉल्यूम. इस एरिया वाले मॉड्यूल में मेरे पास जितने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके एरिया किस तरीके से फाइंड आउट होंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, दैट आई विल राइट इट इन दिस एरिया मॉड्यूल. और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए, उसके लिए हमारे पास ये मॉड्यूल होगा volume.py. उसके अंदर हम ये फंक्शंस डिफाइन करेंगे. राइट, अब इट्स अप टू मी कि आप पहले पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं या फिर पहले मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले पैकेज क्रिएट करते हैं. अब पैकेज आपका क्या बच्चों, काइंड ऑफ फोल्डर. राइट, अब फोल्डर क्रिएट करना आप सबको आता है. ये मैंने वो लोकेशन ओपन कर रखी है जहां पर मेरे पाइथन की बाय डिफॉल्ट फाइल्स जो है वो सारी की सारी सेव होती हैं. दिस इज द पाथ. वन मेथड इज यू कैन जस्ट राइट क्लिक हियर, न्यू एंड देन फोल्डर. यहाँ पर आपका सपोज ज्योमेट्री नेम से हमने एक फोल्डर क्रिएट करना है. ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया. दैट मीन्स ये मेरा एक पैकेज क्रिएट हो गया है. इस ज्योमेट्री नेम के पैकेज में मुझे क्या करना है, अपनी फाइल्स को यानी कि मॉड्यूल्स को सेव कराना है. राइट, अब सेकेंड मेथड क्या है पैकेज को क्रिएट करने का, कि अब हम पाइथन पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो why to create a folder like this, why not to create a folder programmatically, right? So I'm deleting this folder
फ्रॉम हेयर, राइट। अब ज्योमेट्री नेम का फोल्डर यहाँ पर नहीं है, राइट। नाउ व्हाट आई एम ओपनिंग माय पाइथन आइडियली, अब इसमें आप देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा import OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, देन OS डॉट मेक dir, मेक डायरेक्टरी, राइट। हियर यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पैकेज। अब यहाँ पर मेरा, अगर मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पर मेरा ज्योमेट्री नेम से अपने आप एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सो आई एम क्लिकिंग इट हियर एंड प्रेसिंग द एंटर की। अब देखो जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया, यहाँ पर ये मेरा ज्योमेट्री नेम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया। दैट मीन्स विद दिस हेल्प ऑफ 2 स्टेटमेंट्स ओनली आई कैन क्रिएट माई फोल्डर और यू कैन से माई डायरेक्टरी और माई पैकेज। इस तरीके से हम अपना पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब ज्योमेट्री नेम से हमने अपना पैकेज क्रिएट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट मॉड्यूल्स। 2 मॉड्यूल्स वी हैव टू डिफाइन, area.py एंड volume.py। इसके अंदर इस मॉड्यूल्स को हमने कहां पर सेव कराना है, अपने ज्योमेट्री नेम के पैकेज में, राइट। सो फॉर दैट यू हैव टू ओपन न्यू फाइल। अब यहाँ पर हमने मॉड्यूल बनाना है एरिया के लिए। अब उसमें मैं डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड आउट करूंगी। लेट्स सपोज आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हियर आई एम रिटर्निंग द वैल्यू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसके बाद लेट्स सपोज हमने एरिया फाइंड आउट करा सर्कल, यहां से मेरे को रेडियस की वैल्यू मिलेगी। सो आई एम रिटर्निंग πr स्क्वायर 3.14। या फिर आप यू कैन डू वन मोर थिंग, इंपोर्ट मैथ। हम अपने मॉड्यूल में अब कोई दूसरा मॉड्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सो इंपोर्ट मैथ एंड हियर यू हैव टू राइट math.py into r, right? So what it will do, it will return the area of the circle πr square प्लस इसने मुझे क्या रिटर्न करके दे दिया, रेक्टेंगल की एरिया, राइट। अब ये मेरा मॉड्यूल बन चुका है। इसको आप सेव करोगे, कहाँ सेव करोगे, अपने पैकेज में। दैट मीन्स विद नेम ज्योमेट्री। दिस इज माय ज्योमेट्री पैकेज। इसको आप ओपन करोगे। हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल दैट इज एरिया, राइट। अब ये मेरा सेव हो गया। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो एज सच एरर मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रहा है और आउटपुट भी नहीं आ रहा है। रीजन इज वेरी ऑब्वियस, आई हैव नॉट कॉल्ड दिस फंक्शंस, राइट। अब सिमिलरली हम एक और मॉड्यूल डिफाइन करेंगे टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स, राइट। अब यहाँ से हम न्यू फाइल ओपन करेंगे डेफ, और यहाँ पर लेट्स सपोज आई एम कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। दिस इज रिटर्न साइड का क्यूब, आई थिंक s into s into s. Then for cuboid, its length into width into height. So return L into W into H, right? अब उसके बाद इनको मुझे क्या करना है, सेव करना है। कहाँ पर सेव करोगे, इसी ज्योमेट्री वाले पैकेज में। एंड हियर आई एम गिविंग द नेम ऑफ माई मॉड्यूल एज वॉल्यूम, राइट। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराना चाहो तो आप एग्जीक्यूट करा लो, एरर नहीं आ रहा है, राइट। अब ये हमारा क्या हो गया, अभी तक हमने सिंपल क्या करा बच्चों, 2 मॉड्यूल्स क्रिएट करें। वन विद नेम एरिया, जिसमें एरिया कैलकुलेट हो रहे ज्योमेट्रिकल शेप्स का। सेकेंड हमने मॉड्यूल डिफाइन किया वॉल्यूम, और ये दोनों मॉड्यूल्स मेरे कहाँ पर सेव हैं, ज्योमेट्री नेम के पैकेज में। अगर आपने पाथ चेक करना हो, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। सी ड्राइव, यूजर, सैप डेटा, लोकल प्रोग्राम, दिस एंड ज्योमेट्री वॉल्यूम एंड हियर इट्स ज्योमेट्री एरिया, राइट। अब मैंने इनको क्या कर दिया, दोनों मॉड्यूल्स को क्लोज कर दिया पाइथन फाइल को। अगर आपने चेक करना हो तो यहाँ पर आपका ज्योमेट्री नेम का फोल्डर है, यहाँ पर आपके क्या आ गए, दोनों मॉड्यूल्स, राइट। अब एक init.py आपने एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है और इसको आपने इसी पैकेज में स्टोर कराना है, राइट। आपने इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना भी चाहो तो सिंपल आप लिख सकते हो इंपोर्ट एरिया, इंपोर्ट वॉल्यूम, इस तरीके से, और यू कैन लीव इट ब्लैंक एज वेल। इसको आपने कहाँ सेव करना है, ज्योमेट्री नेम के पैकेज में, $_ init $_, राइट। .py एक्सटेंशन ये बाय डिफॉल्ट भी ले लेगा। तो अब मैंने यहाँ पर सिर्फ अपनी फाइल का नेम क्या दिया, $_ init $_ एंड देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। अब इस init फाइल का मेन काम क्या रहता है कि ये बाकी फोल्डर्स को डिफरेंशिएट करता है मेरे पैकेज के फोल्डर से। अब ऐसे तो मेरे पास काफी सारे फोल्डर्स हैं,
बट सारे फोल्डर्स तो पैकेज नहीं है। अब जैसे ये लिस्ट नेम से फोल्डर है, दिस इज नॉट द पैकेज। इसको आइडेंटिफाई कराता है कि जिसके अंदर ये इनिट फाइल है, तो दैट मीन्स उसको इसने क्या कंसीडर करना, उस डायरेक्टरी को एज अ पैकेज, राइट। अब अगर इसके अंदर आपका कोई सब फोल्डर भी होता तो आपको ये शॉर्टकट क्रिएट हो गया बाय मिस्टेक। अगर इसके अंदर आपका कोई सब फोल्डर या सब पैकेज भी होता तो उसके अंदर भी आपको ये इनिट वाली फाइल प्लेस करनी पड़ती, राइट। अभी दिखाएंगे कि इसके बिना भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, वो भी अभी फर्दर डिस्कशन करेंगे, राइट। अभी हमने क्या किया, सिंपल एक इनिट फाइल बना दी, वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी एक पाइथन की फाइल ओपन करेंगे। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, जैसे आपके मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, इनके फंक्शंस को कॉल करके हम वर्क करते हैं। अब सिमिलर वी विल डू इट हियर आल्सो। अब मेरा मॉड्यूल किस नेम से है, import geometry dot area। import हो गया। first you have to write the name of the package, then you have to write the name of the module। बेसिकली हमें import क्या करना है, मॉड्यूल, और मॉड्यूल का पाथ क्या है बच्चों, geometry dot area। similarly you can import geometry dot volume also, right। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एरिया सर्कल का। So you can write it here, area of circle, और हमने फंक्शन का नेम सर्कल ही दिया आई थिंक, और एक वैल्यू हमने पास कर दी, राइट। एंड सेकेंड, अब सर्कल फंक्शन को देखो किस तरीके से कॉल करना है, ज्योमेट्री डॉट एरिया डॉट सर्कल। अदरवाइज व्हाट एल्स यू कैन डू, एज करके सपोज मैंने ले लिया ए, तो आप सिंपल लिख सकते हो ए डॉट सर्कल, क्योंकि उस सर्कल को कॉल करने का कंप्लीट पाथ मुझे प्रोवाइड करना है, राइट। सेकेंड हमने था आई थिंक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ए डॉट रेक्टेंगल, ये वैल्यूज 3 वैल्यूज पास करेंगे इसमें, राइट। इसी तरीके से हम वॉल्यूम का कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको हम यहाँ पर अलाइज दे देते हैं बच्चों एज करके कैपिटल वी। सो हियर वी कैन राइट कैपिटल वी डॉट क्यूब एंड देन 4 एंड लास्ट इज प्रिंट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वी डॉट क्यूबॉइड। इसमें हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, राइट। अब जब आप इसको सेव करोगे, अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, इसको कहाँ सेव करें, कि जहां हमारा पैकेज सेव है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको ज्योमेट्री पैकेज में ही सेव करो। रीजन बीइंग दैट कि आप जितने भी क्या बाकी सारे पैकेजेस यूज करते हो, जो इनबिल्ट पैकेजेस हैं, क्या आप अपने प्रोग्राम को वहीं जाकर सेव करते हो जहां आपका पैकेज है, नो, राइट। सो दैट मीन्स आप अपने इस जो आप जिस फाइल में आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हो, वो फाइल आप अपनी कहीं पर भी सेव कर सकते हो। अब इसके साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, काफी इसको एक्सप्लोर भी करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हमने अपना नेम दे दिया, लेट सपोज शेप्स नेम से हमारा क्या है, पाइथन की फाइल है। अब इसको मैंने पाइथन 39 डिफॉल्ट जो आपका लोकेशन है वहां सेव कर दिया है, पैकेज के अंदर सेव नहीं किया, राइट। आई एम क्लिकिंग ऑन दिस सेव बटन। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि इट इज एग्जीक्यूटिंग और नॉट, यस। एरिया ऑफ सर्कल ये हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट। अब अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो बच्चों, इंपोर्ट ज्योमेट्री डॉट एरिया एंड देन यू हैव टू राइट ज्योमेट्री डॉट एरिया डॉट सर्कल, और यहाँ पर हमने दे दिया रेडियस 3, राइट। तो अब देखो जिस तरीके से आप अपने जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स है उसको हम पाइथन शेल में यूज करते हैं, similarly we can use our user defined modules also in this python shell। अब एक हेल्प फंक्शन होता है बच्चों, वो क्या करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा, किससे रिलेटेड, मेरे पैकेज से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ हेल्प ज्योमेट्री, तो उस ज्योमेट्री वाले पैकेज की इसने मुझे बता दिए, हेल्प ऑन पैकेज ज्योमेट्री। नेम क्या है मेरे पैकेज का, ज्योमेट्री। पैकेज कंटेन्स एरिया एंड वॉल्यूम, 2 मॉड्यूल्स हैं। फाइल का उसने मुझे क्या बता दिया, पाथ, राइट। यही अगर मैं बात करूं, लेट सपोज आई एम राइटिंग इंपोर्ट रैंडम एंड हेल्प रैंडम, राइट। अब जो आपका रैंडम मॉड्यूल है, इसकी जो हेल्प आई है, हेल्प ऑन मॉड्यूल रैंडम, ये नेम लिखा हुआ आ गया।
अब ये सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है बच्चों, दिस इज नॉन एज डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर कोई फंक्शन है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ रही है इसमें, बट हमारे फंक्शंस की तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई, रीजन हमने तो ऐड ही नहीं की, राइट। तो नाउ वी विल ऐड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आवर modules. Now see how to add the documentation. From here we will open our modules. जो हमारे ज्योमेट्री पैकेज में एक हमारा मॉड्यूल है area.py. The very first line, और ये आपने किस में लिखना है बच्चों, ट्रिपल कोट्स में। This module is used to find area of various geometrical shapes. राइट, इसके बाद ट्रिपल कोट्स को कर देंगे क्लोज। सिमिलरली जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है उसमें भी जो फर्स्ट लाइन लिखोगे दैट विल बी योर डॉक स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। इसको हम कर देंगे क्लोज। सिमिलरली वी विल राइट हियर आल्सो फाइंड्स एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, राइट। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको सेव कर दिया। सिमिलरली यू विल ऐड इन द वॉल्यूम मॉड्यूल आल्सो, इसको हमने कर दिया क्लोज। अब जब हम अपना ये ओपन करेंगे पाइथन, नाउ वी विल इंपोर्ट आवर मॉड्यूल geometry.area, या सिंपल हम लोग ज्योमेट्री लिख देते हैं यहाँ पर, एंड देन हेल्प एंड देन geometry.area लेट्स सपोज, राइट। दोनों का अगर आपने लिखना है दोनों भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया ज्योमेट्री पैकेज में एरिया एंड देन वॉल्यूम। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, हमने सिर्फ अभी एरिया वाले में ही डॉक्यूमेंटेशन को ऐड किया, तो व्हाट आई विल राइट इट हियर, geometry.area, just a second, यहाँ पर 4 कोट्स बंद हो गए, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, ठीक है। फाइल ओपन ज्योमेट्री एरिया हियर, राइट। चलो इसको अब हम सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको ओपन करेंगे, राइट। चलो इंपोर्ट geometry.area and then here you have to write help geometry.area, right। तो now you can see अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, डॉक स्ट्रिंग जो भी हमने ऐड किया है। दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू फाइंड एरिया ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स। फंक्शन ये आपके अरेंज होंगे बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स में इतने सारे फंक्शंस है, ऑल दीज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमने वैसे पहले रेक्टेंगल का बनाया, फिर सर्कल का बनाया, डजंट मैटर। सर्कल फाइंड्स एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू आर एंड देन रेक्टेंगल लेंथ कोमा ब्रेड्थ एंड फाइंड्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस ये मुझे मेरा क्या दे रहा है बेटा, एरिया मॉड्यूल का पाथ, राइट। सिमिलरली यू कैन ऐड इन द वॉल्यूम मॉड्यूल आल्सो, राइट। अब मेरे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है बच्चों की, जो मेरा पैकेज है, राइट, दिस ज्योमेट्री पैकेज, ये मेरा इस लोकेशन पर है हियर, एंड आई एम हैविंग माय पाइथन स्क्रिप्ट फाइल व्हिच इज इंपोर्टिंग दिस पैकेज इज एट द सेम लोकेशन। दोनों ही फाइल्स मेरी कहां पर है, सेम लोकेशन पर है, राइट। अब क्या मैं इस शेप्स वाले फाइल को, मींस द वन व्हिच इज इंपोर्टिंग द मॉड्यूल, क्या हम इसको किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं कि नहीं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्या करा, अब देखो आप लोग खुद से सोच कर देखो, आपने लेट सपोज सी ड्राइव में पाइथन इंस्टॉल किया, आप अपने पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हो, मॉड्यूल्स पे इंपोर्ट करते हो, क्या हम अपने पाइथन की फाइल्स दूसरी लोकेशन पर नहीं सेव कर सकते? बिल्कुल कर सकते, राइट। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इसको मैंने कर दिया यहाँ से एडिट विद आइडियली, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया बच्चों। अभी इस शेप्स वाले फोल्डर को मैंने इसको, सॉरी नॉट फोल्डर, इस पाइथन फाइल को मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट, राइट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, इसमें भी कुछ नहीं है। अब मैंने अपने पाइथन आइडियली ओपन करी है, न्यू फाइल, ये वही सारा कोड है मैंने पेस्ट किया है। नाउ आई एम ट्राइंग टू सेव दिस फाइल इन ई ड्राइव, राइट।
नाउ दिस इज माय ई ड्राइव। यहाँ पर हमने पैकेज जो हमारा था वो ज्योमेट्री नेम से वो सी ड्राइव में उसी लोकेशन पर है। अब यहाँ पर हम दे देते हैं फाइल का नेम, लेट्स सपोज शेप्स। ये वो फाइल है जो मेरे उस पैकेज को इंपोर्ट करा रही है, जो पैकेज मेरा कहाँ पर है, सी ड्राइव में। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो इट इज एग्जीक्यूटिंग परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका मॉड्यूल किसी दूसरे लोकेशन पर है, प्लस आपकी जो पाइथन की फाइल है जो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रही है वो दोनों दूसरी लोकेशन पर हो सकती हैं। बट इसमें एक कंडीशन क्या है बच्चों मेरे पास, कि आपकी जो पैकेज है, ये हमने सी ड्राइव ओपन किया, यहाँ पे ये हमारा पैकेज है ज्योमेट्री नेम से, इसको मैंने कट करके लेट्स सपोज ई ड्राइव में यहाँ पर सेव कर दिया। और अगर मैं अपने शेप्स वाली फाइल को, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस शेप्स वाली फाइल को अब हमने डिलीट कर दिया। पैकेज मेरा अब ई ड्राइव में, राइट। अब हमने न्यू फाइल ओपन करी है, इसको अब हम सेव करेंगे। और अब हम इसको कहाँ सेव कर रहे हैं बच्चों, एफ ड्राइव में। यहाँ पर हमने दे दिया इसका नाम लेट्स सपोज शेप्स, राइट। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो अब एरर आ रहा है। तो एरर आपका किस केस में आएगा बच्चों, या तो आप अपनी जो आपका मॉड्यूल है उसको आप सी ड्राइव में अगर सेव कर रहे हो जहां पर आपकी पाइथन की सारी फाइल्स हैं, तो आप उस फाइल को जो पाइथन के मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रही है उसको आप किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हो। बट अगर आप डिफरेंट लोकेशन ले रहे हो तो आपकी मॉड्यूल वाली फाइल प्लस द वन विच इज इम्पोर्टिंग दैट मॉड्यूल वो आपकी कहाँ पर होंगी, सेम लोकेशन पर, राइट। अब बात आती है init.py फाइल की। अब इसको एक बार हम रख देते हैं जहां पर पहले सेव किया था एक्चुअल, राइट। ये हमारा ज्योमेट्री शेप्स नेम से फाइल है, ई ड्राइव में इसको सेव कर देते हैं क्योंकि हमारा पैकेज भी कहां पर है, ई ड्राइव में है, राइट। सॉरी, हाँ, ई ड्राइव में। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं बच्चों तो ये अब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, राइट। इस shapes.py को ओपन करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ बच्चों, ज्योमेट्री वाले अपने पैकेज में से इस init.py को सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, डिलीट, राइट। मींस मैंने init.py फाइल मेरे पैकेज में है ही नहीं। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये मेरी shapes.py की फाइल है, अब भी ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। मींस आपका जो पाइथन का कोड है बच्चों वो विदाउट, अगर मेरे उसमें पैकेज में इनिट फाइल नहीं भी है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। रीजन बीइंग दैट बच्चों जो हमारा पाइथन का 3.3 प्लस अबव वर्जन है उसमें हमारे को अलग से इनिट फाइल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको अलग से पैकेज दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयरएज जो हमारे पाइथन के प्रीवियस वर्जन्स में थे, देयर इट वाज मैंडेटरी टू क्रिएट दिस init.py फाइल आल्सो, but in newer versions, that is Python 3.3 plus and above, there is no need to create this init.py file, but it's always advisable to create this init file. The reason being that बच्चों की आपके जो फोल्डर है उसको ये सेपरेट आइडेंटिफाई कराता है कि this one is my package. प्लस इसमें हमारे पास एक नेम स्पेस का इश्यू आता है कि लेट सपोज अगर मेरे पास सेम नेम से भी पैकेजेस हैं तो इनिट फाइल अगर मैं यूज कर रही हूँ उसमें मैंने क्रिएट की है तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पैकेज के ही फंक्शंस को वो एक्सेस करेगा, राइट। इस टॉपिक पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल विद दिस बिकॉज ये आपके करिकुलम में इतना डिटेल में नहीं है, बट इट्स अप टू यू। इट्स बेटर इवन टू क्रिएट दिस init.py फाइल आल्सो। दिस फाइल init.py in a folder indicates it is an importable Python package, कि आप अपने इस पाइथन पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो। विदाउट इनिट फाइल अ फोल्डर इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पाइथन पैकेज, राइट। वी कैन इवन ऐड एन एम्प्टी फाइल, जो आपकी init.py फाइल इट कैन बी एम्प्टी, बस उस फोल्डर में वहां पर होनी चाहिए, राइट। नाउ init.py फाइल इज नॉट नीडेड फ्रॉम पाइथन वर्जन 3.3 एंड अबव। इसकी पाइथन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर इट्स क्लियरली मेंशन all folders from Python version 3.3 and above are considered a namespace package. All folders from Python 3.3 and above having a init.py files are considered a standard package.
ठीक है, इसमें आपका इशू कब आएगा बच्चों? लेट सपोज हियर वी आर हैविंग, इसको इसी वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, न्यू वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट्स भी नहीं रहेगी, राइट। लेट्स क्रिएट एंड लेट्स इंसर्ट एन एम्प्टी स्लाइड हियर, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। नाउ सी दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। लेट्स सपोज बच्चों मैंने यहाँ पर एक माई पैकेज नेम से एक पैकेज बनाया, माई पैकेज 1 नेम से। लेट्स सपोज ये मेरा एक पैकेज है, ठीक है। इस पैकेज के अंदर मेरे पास एक फाइल 1 डॉट से मॉड्यूल है, राइट। इसमें मेरे पास init.py फाइल मैंने क्रिएट नहीं की, और यू कैन राइट $init दिस फाइल आई हैव नॉट क्रिएटेड। मेरे पास अब इसी नेम से एक और पैकेज भी है, पैकेज 1, और यहाँ पर मेरे पास है फाइल 2.py, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर भी $init वाली फाइल क्रिएट नहीं की, राइट। सो अब ये पैकेज मेरे डिफरेंट लोकेशन पर भी हो सकते हैं, मीन्स रूट फोल्डर सेम है, सी ड्राइव में ही मैंने इनको कहीं पर क्रिएट कर रखा है, राइट। तो अब क्या होगा बच्चों, जब मैं अपने पैकेज को इंपोर्ट कराऊंगी, लाइक इफ आई एम राइटिंग इंपोर्ट माई पैकेज 1, अब जब मैं इस फाइल के अंदर के फंक्शंस को भी कॉल कर सकती हूँ, इस फाइल के फंक्शंस के अंदर मीन्स मॉड्यूल, इस पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद मीन्स अब एक तरीके से मेरे दोनों पैकेज इंपोर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अब आपका क्या होगा, इस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है मैं उसको भी यहाँ पर कॉल कर सकती हूँ, इस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस है मैं उसको भी यहाँ पर कॉल कर सकती हूँ। वेयर एज अगर मैं अपनी init फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दूंगी $init_py, if I will create this file here, so I can access the functions of this module only by importing this package, right? फिर मैं अपने दूसरे पैकेज के मॉड्यूल के फंक्शंस को इंपोर्ट नहीं करा पाऊंगी। दिस इज द मेन रीजन जो आपका पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली मेंशन है, राइट। सो आई होप विद दिस आपको ये मॉड्यूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया इसके बाद, 2 यूजफुल फंक्शंस to be used with modules. So now first we will discuss help function. It is used to display the docstring. Help function अभी हमने use भी किया है as description of module along with following details like module name, file name, location, function name along with this description and constants. तो help function मुझे उस मॉड्यूल से रिलेटेड सारी चीजों की डिटेल देगा, उसके डिस्क्रिप्शन, फंक्शन नेम, कौन से मॉड्यूल्स हैं, क्या उसका पाथ, कहाँ पर वो स्टोर है, एवरीथिंग, राइट। Whereas जो आपका dir function है, it is used to display details of a module but only in the form of a list containing names of elements present in the module. कि उस मॉड्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मेंबर, फंक्शन, क्लास, कॉन्स्टेंट्स, सिर्फ उनको लिस्ट की फॉर्म में वो मुझे क्या दे देगा, डिटेल्स विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, राइट। अब अगर हम इसको पाइथन में एग्जीक्यूट करें, सो हियर इफ आई एम राइटिंग इंपोर्ट लेट्स सपोज रैंडम एंड देन हेल्प एंड देन रैंडम, राइट। तो इसने मुझे 895 लाइंस की ये डिस्क्रिप्शन दी है कंप्लीट हेल्प मॉड्यूल के बारे में, सॉरी रैंडम मॉड्यूल के बारे में। इसमें ये सारी की सारी आपके डिटेल्स हैं। वेयरएज हियर इफ आई विल राइट dir इंपोर्ट करना, बट देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल अगेन, राइट। सो आपने अब यहाँ पर क्या लिखना है, dir एंड देन द नेम ऑफ द मॉड्यूल। सो यू कैन सी अब मुझे इसने सिर्फ जो लिस्ट की फॉर्म में डेटा दे दिया है, वो सारे जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, फंक्शंस, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, एवरीथिंग, बट इसमें कुछ भी डिस्क्रिप्शन, डॉक्स्ट्रिंग कुछ भी आपका डिटेल में मेंशन नहीं है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस, राइट। दिस इज द सिंटैक्स नाउ, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एंड देन हियर यू हैव टू राइट dir इंस्टेड ऑफ हेल्प, राइट। सो आई होप विद दिस आपके इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं दैट आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.